Beginning with the name of Allah, who is the Lord of universe, the most bountiful and the most gracious. Assalamu alaikum to all of you in the today's session presented by Medical Life Care Association in collaboration with Al Anahat Foundation. And a warm welcome from my side. I am Sibba Akbar and I will assist you with today's session. Today's topic is impact of nutrition on mental health, and our guest speaker is Miss Rabia Shabir. I will share her short introduction for you. She has been a gold medalist throughout her MPhil and MSc. She has done MPhil in Human Nutrition and Dietetics and MSc Clinical Psychology from King Edward Medical University. Currently, she is consultant nutritionist and dietitian in Lifeline Hospital, Johor Town, Lahore, and senior lecturer in the Department of Psychology as well as in the Department of Nutrition in Astra Institute. I would like to welcome our CEO, Dr. Maham Khalid, our Director of General, Mr. Hasnat, Director of Administration, Ms. Taiba Sattar, Director of all departments, Ms. Atika Rahman, and all the hardworking team of MLCA. So moving towards the session, I would like to welcome Ms. Rabia Shabir to share her deepest knowledge regarding the topic. All of you kindly listen carefully, and if you have any kind of query, you can ask in the comment box. There will be a question and answer session at the end also. Thank you. Yes, Ms. Rabia, you can start now. Thank you so much, Medicos Life Care Association, for giving me the opportunity presenting myself in front of all the youngsters who are all the knowledge seekers to present the topic of impact of nutrition on mental health. I'm very grateful to all of you for the introduction as well. Without delaying much, we must continue with our topic. The topic we are going to discuss is the impact of nutrition on mental health. Basically हम दो components को discuss करने वाले हैं एक साथ. एक तो है हमारी mental health और साथ हम discuss करेंगे कि nutrition का क्या impact है. How you can improve your mental health through nutrition, and how what is the basic role, what is the basic we can say the benefits of having a well balanced diet when it comes to improving our mental health, our mental status. मेंटल हेल्थ जो है बेसिकली हम उसको किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एनी डोमेन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. क्रिएटिविटी के लिए भी मेंटल हेल्थ ही की रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा आप अगर सोशल साइंसेस देख लें, अलाइड हेल्थ साइंसेस की आप बात कर लें, आप अगर बिहेवियरल साइंसेस की बात कर लें, बिजनेस साइंसेस की बात कर लें, मैनेजमेंट साइंसेस की बात कर लें, इन सब के अंदर मेंटल हेल्थ बहुत एक अपना इम्पॉर्टेंट मेजर रोल रखती है जिसको आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते. अब इस चीज को एविडेंट करने के लिए एक डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज की है हेल्थ की, जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो WHO के अकॉर्डिंग ये है कि इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. इसका ये मतलब है कि हेल्थ के इसका ये मतलब है कि आप हेल्थ में से हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर से मेंटल हेल्थ को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि बेसिकली व्हाट इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं और साइकोलॉजी के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को एज हम पेरेंट एसोसिएशन कंसिडर करते हैं और उसी की डोमेन में हम सारी डेफिनेशन, सारे क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं. जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो ये कहती है कि मेंटल हेल्थ इज सब्जेक्टिव वेलबींग. सब्जेक्टिव वेलबींग का ये मतलब होता है व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को फील इस तरह से कर रहे हैं दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ इज ऑन अ सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वेलनेस, इट मींस you are enjoying a subjective well-being. The second component is perceived self-efficacy. How much you think you are capable, how much you think you are efficient.
जो टास्क आपको असाइन किए गए हैं, जो टास्क आपसे रिक्वायर्ड हैं, आप उनको कितना कैरी आउट करते हैं और किस किस तरह से आप अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं. The third component is autonomy and the fourth one is competence. Autonomy means will power. आपके अंदर will power कितनी है, आप खुद कितना अपने आप पर डिपेंड करते हैं, और उसके अलावा आप अपने आप को कॉम्पिटेंट कितना समझते हैं. आप ना ही किसी से अपने आप को इंफीरियर समझें, ना ही किसी से अपने आप को सुपीरियर समझें. आपका अपना कॉम्पिटेंस का लेवल क्या है. और उसके अलावा फर्दर डिस्कशन में करूंगी मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी. सो बेसिकली मेंटल हेल्थ के कुछ ये क्राइटेरियाज हैं. अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो इट मींस यू आर एंजॉयिंग अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. अगर आप इनमें से किसी चीज को लैक कर रहे हैं, आप में विल पावर नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, आप ये नहीं जानते हैं कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आपके अंदर अपने आप को वेलनेस फील नहीं होती है आपको किसी भी वजह से, तो इट मींस यू आर नॉट एंजॉयिंग अ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. इसके बाद मैं कुछ डिस्कशन करूंगी कि कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को. बेसिकली हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ, विच आर इन्फ्लुएंसिंग योर हेल्थ, जिसमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है. आप देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ द डिजीजेस व्हिच आर रनिंग कंटिन्यूअसली इन आवर फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दे जस्ट सिंपली पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस. और होता क्या है कि रिसर्च ये प्रूव करती है कि इवन देयर आर लॉट्स ऑफ साइकियाट्रिक इलनेसेस जो कि जीन्स में म्यूटेशंस होने की वजह से आ जाती हैं इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, बट विद अ प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट you can overcome the manifestation of these genes in form of the diseases, or you can even suppress the sign and symptoms of the disease even if your parents are carrier of that psychiatric illnesses. Okay, next is about the socioeconomic status. Socioeconomic status तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पे अफेक्ट करता है. अब क्या बात है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर इस तरह से है कि आप जिस तरह से ये देखते हैं, कोई भी इंसान किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग कर रहा है, चाहे वो लोअर सोशल इकोनॉमिक वो या फिर अपर इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं. और इसके अलावा न्यूट्रिशन, आपकी न्यूट्रिशन कैसी है. अगर आप फिजिकली फिट हैं इतनी फिट होते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली महसूस कर रहे हैं तो इट मींस आप मेंटली भी डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं. मेंटल फिटनेस का आप उस टाइम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. बट इफ यू आर लिविंग अ साउंड लाइफ विद वेरी गुड फॉर्म ऑफ वेल बैलेंस्ड, you can have a sound mind as well. जिस तरह हम कहते हैं कि healthy body has a healthy mind, तो ये वही बात है. और हमारे जो पूरा इस टॉपिक का डिस्कशन है उसका एजेंडा भी यही है कि we are discussing about a healthy body and a healthy mind. अच्छा, अब इसके अलावा मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी इस तरह से कि there are two types of behaviors. ठीक है, आपके कुछ अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं और कुछ हैं आपके मैलअडेप्टिव बिहेवियर्स. अडेप्टिव बिहेवियर्स आपके वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस हैं जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है. जिस तरह से अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं अपनी फिटनेस को लेकर, यू मे वॉक रेगुलरली, यू विल अवॉइड ईटिंग जंक फूड, यू विल अवॉइड कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फाइंड प्रोडक्ट्स, और आप एक वेल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, और ये आपकी कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जिसको हम अडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव द बिहेवियर्स व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव, जो कि आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं, एंड दोज आर नोन एज द मैलअडेप्टिव बिहेवियर. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग. आपका बिहेवियर है स्मोकिंग ये जानते हुए समटाइम्स पीपल स्मोक, that smoking is injurious for every organ of the body, for the person who is a smoker and for the passive smokers as well. So that will be your maladaptive behavior. अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट नीड्स की. न्यूट्रिएंट नीड्स तो देखें, जब इंसान की लाइफ का ओरिजिन हो रहा है, जब लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट होता है, इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी हम फीमेल्स की 3 ट्राइमेस्टर के अंदर हमने डिवीजन की होती है कि हमने इन ट्राइमेस्टर के अंदर इतने एडिशनल कैलोरीज प्रोवाइड करने हैं, फिर हम नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने एडिशनल कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में मजीद एडिशनल कैलोरीज हो जाती है. उनको प्रोवाइड करने के बिहाइंड हमारा मोटिव ये होता है कि जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं एक फीमेल की, क्योंकि फीमेल इज नाउ हैविंग द फूड फॉर टू, एक तो बेबी के लिए और एक वो खुद के लिए, एक आने वाले टाइम के लिए जब वो ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन करवाएगी, और एक बेसिकली वो टाइम होगा जबकि फीमेल
अब खुद फीटस उसमें डेवलप हो रहा है, उसके ब्रेस्ट टिश्यूज डेवलप होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड्स डेवलप होंगे पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए फीमेल को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। सो इन शॉर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम बेसिकली करते क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उनमें एक बच्चे की जो डेवलप हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ब्रेन, हेड और फेस, इन तीनों मेजर पार्ट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन तीनों मेजर पार्ट्स की डेवलपमेंट को कैरी ऑन करने के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि विटामिन ए जो है बेसिकली आयरन मसल्स बना रहा है, नर्व्स को बना रहा है, सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले कर रहा है, एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है, जिसके बगैर कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकता आपका। इसी तरह से वी नीड विटामिन बी6। अब विटामिन बी6 जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, नर्व्स की कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जो डेवलपिंग ब्रेन है, ब्रेन का साइज किस हद तक डेवलप होना है, कौन से स्ट्रक्चर्स कितने डेवलप होंगे, तो इन सब की डेवलपमेंट के अंदर बी6 रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को उसकी प्रेगनेंसी में विटामिन बी6 ना दिया जाए तो डेफिनेटली जो बेबी है क्या होगा कि जो बेबी है उसकी हेड, नेक और फेस, इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं बताऊंगी फॉलेट के बारे में। फॉलेट, फॉलिक एसिड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जब भी हम मेंटल हेल्थ या फिर हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फॉलेट कम्स एट प्राइम इम्पोर्टेंस। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी में फॉलेट डेफिशिएंसी होने लगती है या फिर वो प्रेगनेंसी से पहले फॉलेट डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, तो उस टाइम पे देयर आर चांसेस कि 17 से लेकर 30 डेज ऑफ जेस्टेशन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, because at that time the neural tube development is taking place. If the female is lacking folate and folic acid in her diet, neural tube will not develop properly. It will create neural tube defects, जिसमें बहुत कॉमन डिफेक्ट है स्पाइना बाइफिडा। अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप इसको कर सकते हैं डायग्नोज। समटाइम्स क्या होता है कि इसकी भी कुछ स्टेजेस हैं और लेकिन जो बेबीज स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं तो उनकी जो नीड्स हैं प्रॉपर वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और बहुत अर्ली टाइम में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए फॉलेट, फॉलिक एसिड कोग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, एक तो ये कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मैंने फॉलेट का जिक्र किया, अब मैं बात करूंगी फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, फीटस के आरबीसीज की ग्रोथ के लिए, आरबीसीज की रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये फॉलेट के साथ इट इज साइमल्टेनियसली प्लेइंग अ रोल इन प्रिवेंटिंग द फीटस फ्रॉम कैरिंग न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स। और उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल के लिए वेट मैनेजमेंट में फॉलिक एसिड बहुत रोल प्ले करता है। इसी तरह से जब हम आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो सेकंड ट्राइमेस्टर वो टाइम होता है जब लिम्स की ग्रोथ हो रही होती है। उसके अलावा मैक्सिमम ग्रोथ का टाइम होता है, यहाँ पर हम मजीद एडिशनल कैलोरीज दे देते हैं। यहाँ पर अब हमारे वो वाले ऑर्गन जो कि पहले न्यूट्रिएंट्स हम रिसीव कर रहे थे उन तमाम के साथ साथ हमने प्रोटीन्स को ज्यादा कर देना है ताकि लिम्स की ग्रोथ हो, मसल्स की ग्रोथ हो, ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। यहाँ पर हम कुछ रेशो फैट्स का भी इंक्लूड कर देते हैं। उसके बिहाइंड हमारी रीजन ये होती है कि फैट्स प्रॉपर्ली इन द फॉर्म ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकें। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी में ही, क्योंकि देखें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ तो जिंदगी अभी दुनिया में आने से पहले जब एक जिंदगी का वजूद आ गया है तो तब से वो इम्पोर्टेंट है। अब बेसिकली क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी हम फीमेल को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, अरेकिडोनिक एसिड, इकोजा पेंटानोइक एसिड, डिकोजा हेक्सानोइक एसिड, जो सब के सब आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ही कैटेगरीज में इंक्लूडेड हैं, वो सब के सब हमने प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बिहाइंड रीजन ये है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर जाएं, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप कर जाएं। कोई न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमीटर आपका इम्बैलेंस्ड ना रहे, तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बेसिक वेल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में बन जाए ताकि ब्रेन के तमाम फंक्शंस प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सके। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपके साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओमेगा जो है आपके पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों एक आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट, अलॉन्ग विद सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। अब ये है कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक ब्लेंड है आपका वेल बैलेंस्ड डाइट का। हम ये कहते हैं कि व्हाट इज वेल बैलेंस्ड डाइट, एनी डाइट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ beautiful blend in an accurate proportion of macro and the micronutrients that are essential for the growth, development and repair of the body's systems, tissues and organs is considered a well balanced diet. जनरल रिकमेंडेशंस में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें 45 से 55% कार्बोहाइड्रेट्स की कंज्यूम करनी चाहिए। हमारे पास 10 से 18% रेशो प्रोटीन्स के लिए है और हमारे पास 30% रेशो हम फैट्स को देते हैं, जिसमें हमने डिवीजन की हुई है। सैचुरेटेड फैट्स जो कि एनिमल बेस्ड फैट हैं उनको हम 10% एंड अनसैचुरेटेड वन आर गिवन 20%। सो बेसिकली अनसैचुरेटेड वन आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने अनसैचुरेटेड को ज्यादा कॉम्पोजिशन में दिया है। इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें, विटामिन्स और मिनरल्स को कंज्यूम करें, तो ये एक आपका वेल बैलेंस्ड डाइट का रेशो बन जाता है। अब क्या है कि जब भी हमारे पास हम अगर मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाहूँ कि मैल न्यूट्रिशन के बारे में कि मैल न्यूट्रिशन क्या है और मैल न्यूट्रिशन होती क्यों है, तो सबसे पहली तो बात ये कि व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इज बेसिकली इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इसके अंदर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस दो तरह से हो सकती है, या तो एक्सेसिव हो जाए या फिर अंडर हो जाए, मतलब आप डेफिशिएंट हो जाए न्यूट्रिएंट्स में तब भी आप मैलनरिश्ड ही कहलाएंगे। एंड व्हेन यू आर ओवर कंज्यूमिंग एनी न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द बैलेंस देन आल्सो यू आर सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन और जो एक्सेसिव न्यूट्रिशन है, इन दोनों का रोल आपका लिंक करता है विद द ऑनसेट ऑफ डिजीजेस। एक पूरा साइकिल है। देखिए, जब भी कोई बेबी है या कोई इन्फेंट है या कोई एडल्ट है वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, जब वो या वो फिर मेल नरिश्ड है, सिंपली मैं कह लूँ कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कंज्यूम कर रहा है जो कि बैलेंस्ड नहीं है, या फिर वो कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है जो कि बहुत डेफिशिएंट है, प्रॉपर डाइट फॉर्म उसकी नहीं है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी बॉडी डिफरेंट डिजीजेस, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर जाएगा, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ का प्रोसेस है आपका वो स्लो डाउन कर जाएगा। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही हैं, रिपेयर का प्रोसेस है, आपकी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो आपका slow down हो जाएगा। It means you are likely to suffer from several syndromes, illnesses, and any other growth patterns that are going to cause a great harm to you in your near future. अब जो दो मेन कैटेगरीज डिस्कस में करूंगी आपसे अबाउट मैलनरिशमेंट, एक तो ये कि अगर मैलनरिश्ड हैं आप तो आप न्यूट्रिशनल स्टंटिंग का भी शिकार हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल वेस्टिंग का भी शिकार हो सकते हैं। स्टंटिंग के अंदर देयर इज लो स्केलेटल हाइट एंड वेस्टिंग के अंदर द बीएमआई, द बॉडी मास इंडेक्स इज लो। और ये दोनों हो क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट या तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जो कि बैलेंस्ड फेज में नहीं है, या फिर कोई न्यूट्रिएंट या कोई मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप उनको बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसके अलावा क्या है कि अब जो स्टंटिंग है और न्यूट्रिशनल वेस्टिंग, इन दोनों की अगर आप क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस इन दोनों की दो तरह से होती हैं। एक तो आपके पास शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और एक आपके पास लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस आने का ये मतलब है कि आप फॉर द टाइम जब आपको डेफिशिएंसी हुई है किसी न्यूट्रिएंट की, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाएं, जिस तरह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से विजन इंपेयरमेंट हो जाती है, विटामिन सी जो है वो स्कर्वी को लीड करता है, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आप देखें तो आपकी बोन्स इश्यूज आने लग जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि एक्यूट हैं, शॉर्टली फॉर टाइम हो रही हैं, अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं विद अ प्रॉपर डाइट तो ये आपको इश्यूज कॉज नहीं करेंगे।
हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा अफेक्ट होती है जब हम लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज का शिकार होते हैं। फॉर द वेरी पीरियड ऑफ टाइम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अपसेट हो जाएगा। जो हमारा ब्रेन और गट का बैरियर है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, बेसिकली वो क्या होगा कि वो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे, तो उस वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो पूर्ण होने लग जाएगी। अब बहुत सारी कॉग्निटिव इम्प्लीकेशंस हैं, जिस तरह से स्कूल परफॉर्मेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है बच्चों के अंदर ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। आपका जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, आईक्यू लेवल, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा मेमोरी लॉस विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके जो ब्रेन के पार्ट्स मेमोरी के साथ इन्वॉल्व हैं, जो आपके पार्ट्स इमोशंस, सिंपैथी और एम्पैथी को फील कर रहे हैं, वो आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके डिटीरियोरेट होने लग जाएंगे। उसके अलावा आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज का भी शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में, रीडिंग में, राइटिंग स्किल्स में आपको ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है विद दूसरे लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स बनाना, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, वो पुअर हो सकती है। लैंग्वेज की डेवलपमेंट, जो ब्रेन के पार्ट्स आपके कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो वो भी पुअर हो सकती है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, वो सब आपकी पुअर हो जाती है व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग अ वेल बिल्ड ऑफ अ न्यूट्रिटिव डाइट। और आप डिमेंशिया का भी शिकार हो सकते हैं। आप डिफरेंट से कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे थे। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह से ज़रूरी हैं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि विटामिन B3 जो है, आप उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है पेलाग्रा, और पेलाग्रा को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद 3 Ds: डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। डायरिया इज रिलेटेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेशंस। आपके पास जो डर्मेटाइटिस है वो स्किन लेशंस है। एंड डिमेंशिया इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू cause progressive memory loss before a particular age. विटामिन B3 अब इट्स कदर इम्पोर्टेंट है। आप नट्स से, सीड्स से, वेरियस फॉर्म ऑफ मीट्स, इवन कुछ वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड Excuse me, ma'am. जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही थी, तो विटामिन B3 बेसिकली अब डर्माटाइट आपको डिमेंशिया भी कॉज कर सकता है। डिमेंशिया चले ओल्ड एज के अंदर तो एक इशू है, क्योंकि जो मेमोरी लॉस होने लग जाता है, डीजेनरेशन हो जाती है ब्रेन टिश्यूज की, ब्रेन सेल्स की। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विटामिन B3 डेफिशिएंट हैं तो उस सूरत में भी आप डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं, जो कि एक कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है आपकी। अच्छा, इनके अलावा जो इस तरह से आपके पास आयोडीन है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। आयोडीन आपकी इंटेलिजेंस के लेवल को रेस करता है, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आयरन आरबीसीज का कंपोनेंट होने के साथ साथ नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन करवाता है। गुड नर्व इम्पल्सेस कंडक्शन होंगी तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अगर नर्व इम्पल्स आपकी प्रॉपर्ली नहीं कंडक्ट होंगी तो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि डेवलपमेंटल डिलेज जो है वो भी आने लग जाते हैं। बच्चे सही तरीके से उठना, बैठना, चलना फिरना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं। सो ऑन बिल्कुल लास्ट पे जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी वो यही, दैट देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। आप अगर अपनी हेल्थ को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, देन स्टार्ट कंज्यूमिंग अ पॉजिटिव वेल बैलेंस्ड डाइट. With a well balanced diet, you can have a quality of mental health. Thank you. Yes, any questions? अगर आप लोग की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Questions regarding the topic, we can answer it
about mental health, or we can even answer about nutrition and mental health. Yes, Maria Hashim, you may ask your question. मिस सबका ये क्वेश्चन अपने कमेंट में लिखेंगे तो मैं आंसर करूंगी, या फिर अनम्यूट होंगे? दोनों तरह से कर सकते हैं मैम। ठीक है, मारिया हाशिम काइंडली आप अपना लिख लें कमेंट में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास है, फूड कंपोनेंट्स वेरी विद एज। यस ऑफ कोर्स, आपकी फूड की कॉम्पोजिशन जो है वो एज के साथ वेरी करती है। जब हम ग्रोइंग फेज के अंदर होते हैं तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी वो वाले न्यूट्रिएंट्स कुछ कम होने लग जाते हैं, और फिर जिस तरह से हम ओल्डर एज की तरफ आते हैं तो उस टाइम पे आकर हमारे सर्टन न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में हम डिफरेंट डिजीजेस का भी शिकार हो जाते हैं। उनसे फाइट करने के लिए हमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, गर्ल्स को कौन से विटामिन लेने चाहिए और वो कहाँ से ले सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ओरल इनटेक जो है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डाइट के थ्रू लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये दोनों आपके पास मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। आप ज़्यादा विटामिन्स कंज्यूम करना चाहती हैं तो आप एक अच्छी प्रोपोर्शन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। मिनरल्स भी मिलेंगे आपको, विटामिन भी मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि फूड्स या डाइट से ठीक नहीं हो सकती है, देन आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप उनसे कंसल्ट करें और कोई सप्लीमेंट्स रिकमेंड करवाएं। एडल्ट फीमेल, अब ये डिपेंड करता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। देखें, 1800 किलो कैलोरीज जो हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, हमारी सर्टेन कैलकुलेशंस होती है न्यूट्रिशन में, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि आपके हाइट और वेट के मुताबिक वेट कितना, हाइट आपका जो बीएमआई है कितना होना चाहिए। उसी रेंज को देखते हुए हम फिर ये देखते हैं कि आपको वन डे में कितनी किलो कैलोरीज देनी चाहिए। आप अगर एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें जो कि एक नॉर्मल आपकी बॉडी मास इंडेक्स में है, मतलब अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेके 24.9 की रेंज में लाई कर रहा है, तो उस सूरत में हम 1800 किलो कैलोरीज डेली दे सकते हैं। अब वो आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, उसके अंदर प्लांट बेस्ड सोर्सेज फैट्स की भी लेनी है, आपने लीन प्रोटीन्स भी लेने हैं, दालें भी खानी है, गोश्त भी खाना है, आपने बीन्स का इस्तेमाल भी करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपने फ्रूट्स का इंटेक भी करना है। और जहाँ तक प्रॉपर डाइट प्लान की फॉर्म में अगर आप कंसल्टेशंस चाहते हैं तो आप न्यूट्रिशन कम्युनिटी को अप्रोच करें ताकि वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना कर दें उसके लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर मीटिंग जो है वो एंड हो जाती है तो आप सब उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करेंगे। और अच्छा, मैम आप भी। ओके, एक और मेरे पास ये आया है कि अगर कोई मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहता है तो उसके लिए मिस सिबगा आपको प्रोवाइड कर देंगे डिटेल्स। मिस सिबगा, आप काइंडली डिटेल में आपको दूंगी हॉस्पिटल में मैं कब अवेलेबल हूँ, तो आप वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा इन केस इफ एनीवन वांट्स टू कंसल्ट। ओके मैम, कर दूंगी मैं। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कि फिटनेस के हवाले से प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अच्छा, देखें, सबसे पहली बात ये कि अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। डेफिशिएंसी इस तरह की है, अगर वो डाइट से ठीक हो सकती है, रेड मीट छोड़ के जो आपके पास, मैं बीफ की बात कर रही हूँ, लीन पोर्शन चिकन का, लीन पोर्शन मटन का और फिश, एक बहुत अच्छा ब्लेंड है आपके पास प्रोटीन्स का। 4 to 6 आउंसेस डेली इस प्रोटीन का इंटेक स्टार्ट करें। प्रोटीन शेक्स बनाकर पिए, प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उनको शेक्स में डालकर पिए, तो आप एज अ सप्लीमेंट एक बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। हेयर फॉल के लिए यस ऑफ कोर्स, आप हेयर फॉल के लिए जिन विटामिन सी और जिंक वाले जो सप्लीमेंट्स हैं आप वो ज़रूर ट्राई करें, वो हेयर फॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि दोज हु आर 50 प्लस, अगर एज 50 साल से ज़्यादा है और फीमेल है तो उसको
नॉर्मल डाइट से हटकर। देखें, एक बात में तमाम जो गर्ल्स हैं 20s की एज में, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यूजुअली कैल्शियम की यूजुअली क्या होता है कि 35 ईयर्स की एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वो नहीं प्रॉपर हो पाती। उस सूरत में हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिस तरह